Okay. Last heading which we have studied was TC or Krebs cycle. Now we have to start the new concept of electron transport cycle. I think in the previous class I have told you that if we will see two different books, we will get two different type of diagrams on page number 233. In old book another diagram is given, in new book some additional things have been added in that diagram in the new book. Okay, right now I am having old book only. First we will go through this book. Afterwards I will once again I will repeat the same thing with new book also, because some of you are having old concept, old diagram, some of you are having new diagram. Although both are same, but to understand both diagram we need a proper concept. Okay, so first of all I am going through the each and every line of electron transport system from NCERT. Everybody take out your book, open page number 232, so that it should be very clear, because ultimately the energy is produced by the process of electron transport system only. Okay, so electron transport system must be very clear, because this topic will be used throughout your life until you will be in the student phase. So it should be very clear to you. Everybody is having NCERT book? Just raise your hand on a screen like this only. I think everybody might be having. Those who are not having, so it will be, today's class will be useless for you if you are not having NCERT book. Krishna once again. Krishna and Shalini, you have joined the late class. Switch on your video. Otherwise, I will remove you. Okay, now see what is given in your book. The following steps in the respiratory processes are to release and utilize energy stored in the NADH and plus H plus. What is electron transport system? First, we have to know this. Electron transport system will involve a series of steps through which energy will be produced, and for production of energy we have already studied in chemiosmotic hypothesis. For production of energy, proton gradient is required. This gradient activates the enzyme which is called as ATP synthase, and when this enzyme is getting activated, it will result in production of energy. यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई थी केमियोस्मोटिक में? बोलो, माइक एक ही का अनम्यूट है. Anybody else who wants that his mic should be unmuted? Raise your hand. कोई ऐसे नहीं है. एक दो का माइक अनम्यूट रहता है तो प्रॉपर कन्वर्सेशन इज देयर वेदर पीपल आर गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट. चलिए, नो इशू. नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दिस text of NCERT. The following steps in the respiratory processes are to release and utilize energy stored in the NADH plus H plus and FADH2. We have studied three types of energy molecules. One is NADH. One energy molecule was this, and second was FADH, and another one which is well known to us, that is ATP. These three molecules we have till now, it has came into our mind that these three molecules are responsible for production of energy. How these molecules will produce energy, this we will see in electron transport cycle. Okay, if any doubt will be there, just raise your hand on the screen. This is accomplished when they are oxidized to electron transport system and electrons are passed on to oxygen, resulting in the formation of water. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called as electron transport system. What I have told you earlier about electron transport system, जो हमने केमियोस्मोटिक में या Z स्कीम में थोड़ा बहुत जाना था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो वहां मैंने तुम्हें क्या बताया था कि different molecules are there, like suppose that A, B, C, D are different molecules. The electron will first move to E from A.
From A, this electron will move to B. From B, it will move to C, like this. यही सेम चीज मैंने वहां बताई थी. अब यहाँ हमें उसमें क्या ऐड कर लेना है कि what is A, what is B, what is C, what is D, what is D. समझ रहा है? इसी को हमें ऐड कर लेना है अपने पुराने जो हमने कंसेप्ट जाना है. We have to add only these things in our concept. You will get the whole concept of electron transport system. जब बुक में चलेंगे नए पुराने के दोनों की बात करेंगे तो A में जो चीजें होंगी these things will be called as complex first, B will be called as complex second, C will be called as complex third, D will be called as complex fourth. पुराने बुक में जाएंगे तो complex fourth में चीजें खत्म कर दी गई हैं, but in new book I think right now I am not having new book, but I hope that new book is having the concept of complex fifth also. डायग्राम में ऐसा बना है क्या complex fifth? जिसके पास नई बुक है बना है हाथ उठाओ. नहीं बना बागीशा? Anybody of you show me your book. Let me see. तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा बना है या नहीं बना है. नहीं तो चल हाथ. बागीशा हाँ रुक जाओ. अरे यार बहुत छोटा दिख रहा है. इतनी तो मेरी आंख माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 ठीक तो है. 5 तो दिख रहा है जी. बागीशा अनम्यूट योर माइक. सर 4 ही तो लिखा है बुक में बस. कॉम्प्लेक्स 4 तक ही. 4 ही तक लिखा है कॉम्प्लेक्स 4. 4 से ऊपर देखो तो कहीं 5 दिख रहा है क्या? ऊपर कैसे आएगा 5? अरे देखो तो पहले. नहीं. हाँ नहीं सर. नो सर. नहीं दिख रहा है. नहीं. मैंने कहा देख लिया. कहीं उसके लिटरेचर में देखो लास्ट में कहीं कॉम्प्लेक्स 5 दिख रहा है. लास्ट पेज पे पेज नंबर 234 पे है. यस सर लिख रहा है. कॉम्प्लेक्स 5 लिखा है. हाँ लिखा हुआ है. पेज नंबर 234. 234 पे. यस आदित्य. यस सर दिया है. कहाँ पे? Sir, when the electron pass from one carrier in to diagram it is not given. No sir. Okay. मैंने पहले बताया थोड़ा नए पुराने में अंतर होगा. कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 जो डिफरेंस होगा वो मैं बताऊंगा क्या है. बट अभी तुम्हें जो बोर्ड पे मैंने बताया कि अब तक जो हमने पढ़ा था ABCDE, नाउ वी हैव टू नॉट we will exactly know what is ABCDE and that has been named complex 1 2 3 4 and 5. okay? बहुत टफ नहीं है. स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. क्लियर? नाउ सी the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another is called electron transport system and it is present in inner mitochondrial membrane. clear? हमने जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था that hypothesis was not related to mitochondria, that was related to which organelle? वागीशा यू आर अनम्यूटेड. बोलो. यस खुशी. भूल गए हो ना तुम लोग. आओ वापस फिर बता. थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड. यस सर थैलाकॉइड. थाइलाकॉइड सेल ऑर्गेनेल होती है. नहीं. हाँ ये प्लांट सेल का बताए थे ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर में. थाइलाकॉइड इज सेल ऑर्गेनेल. यस तनु. सर सर मैट्रिक्स. रुको तनु बोलो. सर क्लोरो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अच्छा सर क्वेश्चन एक बार वापस पूछिए ना. क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि जो इससे पहले हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था दैट हाइपोथेसिस अच्छा लिंक्ड विद थैलाकॉइड. व्हिच सेल ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में. क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है या थाइलाकॉइड सेल ऑर्गेनेल है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. अभी तो थाइलाकॉइड था. रीजन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो बता दो कि सर आंख. अरे ह्यूमन बॉडी का पार्ट है ना आंख. तो सेल ऑर्गेनेल तो क्लोरोप्लास्ट है. उस सेल ऑर्गेनेल का एक पार्ट है. उस क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है थाइलाकॉइड और ग्रेना. वहां पर जो एंजाइम थी एटीपी सिंथेस, दैट एंजाइम वाज अटैच्ड विद
chloroplast, membrane of chloroplast. Here that enzyme will be attached with the membrane of mitochondria. यही थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में अभी से रख लेना है, ठीक है. Now see, electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle. थोड़ा बहुत बोलने में गड़बड़ हो रहा है, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, बट फिर भी अंडरस्टूड होना चाहिए. 1-2 दिन और लगेगा कंप्लीट रिकवरी में, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, हमने साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा और ग्लाइकोलिसिस पढ़ा. देयर वी हैव स्टडीड दैट NADH इज सिंथेसाइज्ड. पढ़े हैं ये? बस मुंडे हिलाते रहो ताकि मुझे समझ में आए. हाँ, क्या बोल रहा है अभी जो लाइन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज. उसके आगे लिखा है कॉम्प्लेक्स 1, and electrons are then transferred to ubiquinone located within the inner membrane. दिख रहा है अब ऐसा कुछ? थोड़ा बोर्ड पे आ जाओ. NADH आया, okay. This NADH is present in, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा. क्लियर? मैट्रिक्स में कहाँ से आया? बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल. दिस इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. This will enter from matrix. It will enter into which part? It will enter into inner माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल, सपोज करो कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का हिस्सा है. मैट्रिक्स से ये कहाँ गया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है. इसने अपने प्रोटॉन्स को दे दिया कहाँ पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस प्रोटॉन को इधर रिलीज कर देगी. दो से कंफ्यूजन है, इसको हटा दो, हमें सिर्फ प्रोटॉन से मतलब है, ठीक है. कहाँ रिलीज कर देगी? दिस पार्ट इज ऑल्सो, this part is mitochondrial matrix. No, this is mitochondrial matrix, inner sorry, this part will be membrane space. जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, वहां पर कौन आ गया? प्रोटॉन आ गया, ठीक है. थोड़ा अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ी चीजों को पहले समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन होगा. See the statement. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex first, and electrons are then transferred to ubiquinone located in the inner membrane. यहाँ अगर बुक में थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ कहीं यूबिक्विनोन बना होगा. बना है? मेरे पास वो डायग्राम नहीं है जो तुम्हारे पास है, इसलिए मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि व्हाट इज गिवन इन योर बुक. यूबिक्विनोन दिख रहा है, UQ. पहले तो 1-2 अनम्यूटेड हो जाओ. सारे तो म्यूट कर लिए हो, किसको अनम्यूट करूं? रुखसार, यस. और कोई? यस सर, बना है. बना है. यूबिक्विनोन के ऊपर कहीं देखोगे तो शायद लिखा होगा ऐसा, इलेक्ट्रॉन कुछ लिखा होगा. यस सर. दिख रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं Yes, वही लिखा हुआ है कि NADH मैट्रिक्स से कहां आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में आ रहा है, ठीक है. ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है. NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो किसके पास सबसे पहले आ रहे हैं? यूबिक्विनोन के पास आ रहे हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? पहले भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स. H इसमें कैरियर का काम कर रहा है. That H is released in the inner, sorry, membranous space. Membranous space में H को, इसको हम ऐसे, अगर इसे डाउट है तो intermembranous space, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें कौन रिलीज हो गया? प्रोटॉन रिलीज हो गए पहले स्टेप में, ठीक है. यस सर. फिर से एक बार देखिए सेम लाइन को. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex, and electrons are then transferred to ubiquinone.
अब यहाँ पे जो मैंने ए लिखा था, ये जब इस साइकिल में आ रहा है तो डायरेक्ट ये यूबिक्विनोन के पास नहीं आ रहा है। किधर गया यार? Where is duster? कौन ले गया? डस्टर किसी को दिख रहा है क्या? तुम लोगों को कैसे दिखेगा? तुम लोगों को तो बस बोर्ड दिखेगा। हाँ। इसके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक लाइन में वहां खत्म कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NADH से रिलीज हुए और उनको किसने एक्सेप्ट कर लिया? यूबिक्विनोन ने। तो यूबिक्विनोन को अभी हम नीचे लिखते हैं। इसके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट इट, जितना लिखोगे उतना अभी कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ, जब लिखना होगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा FeS मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स 1। बात समझ में आ रही है? अब जरा फिर से एक कोई वागीशा शोमी और NCERT बुक, उसमें शायद कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। और नजदीक करो, दिख ही नहीं रहा यार, क्या देखो, रहने दो, डोंट शो इट। वेट करो एक सेकंड, जरा मैं इसमें देखूं कुछ है क्या। वेट फॉर 1 सेकंड। इसके ग्राफिक्स ठीक नहीं होंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। 1 सेकंड वेट करिए जरा, मैं देख लूं उसमें उसके सॉफ्टवेयर में कुछ है क्या ऐसा। हटो भाई, कहाँ से हटेगा ये? We know that all living things inside the mitochondrial acid cycle back into G, which is then oxidized. Let's gain a preparation of energy and mitochondrial membranes to be included. X4. Electron complex 2, cytochrome BC1 complex or complex 3, cytochrome C, and cytochrome C oxidase or complex. स्क्रीन पे सबके दिख रहा है कुछ? बोलो भाई, कहाँ है? जिसका माइक अनम्यूट था वो भी म्यूट कर लिए क्या? सलोनी अनम्यूट योर माइक। सलोनी एंड प्रिया अनम्यूट योर माइक। क्या दिख रहा है बच्चा स्क्रीन पे अभी? ETS शो कर रहा है। ETS की साइकिल शो कर रही है। चलिए, कुछ इससे हेल्प मिलेगी, बहुत ध्यान रखिए। तो इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड इज, म्यूट योर माइक, जिसके माइक से आवाज आ रही हो म्यूट कर लो प्रिया। सेकंड इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। बुक में भी मेरे ख्याल से यही लिखा होगा। बाद में एक और कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम होगा एटीपेज कॉम्प्लेक्स, उसकी कहानी बाद में देखेंगे। अभी हमने जो जाना था, थोड़ा मैं इससे कर्सर से तुम्हें दिखाता हूं। अभी हमने क्या जाना था कि NADH एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट, NADH से प्रोटॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं ये इस साइकिल में आगे चले जाएंगे, और जो प्रोटॉन रिलीज होंगे वो यहाँ जो ये लिखा हुआ है IMM यानी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स यहाँ चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइकिल में आगे मूव करते जाएंगे। क्लियर है? थोड़ा इसको मैं फिर से शुरू से दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी से मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट थोड़ा सा इससे पहले कंसेप्ट बने, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे।
takes place in the electron transport system or ETS. As you know, glycolysis and the Krebs cycle together result in the formation of reduced coenzymes such as 10 molecules of NADH plus H plus ions and 2 molecules of FADH2 and 4 molecules of ATP. These reduced coenzymes need to be oxidized to release. अभी ये मैंने बोर्ड पे इससे पहले शायद लिखा था कि क्या क्या चीजें बन रही हैं जो ईटीएस में जाएंगी। तो एक तो एटीपी बन जा रहा था, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इटसेल्फ इज एटीपी। बट NADH एंड FADH दीज मॉलिक्यूल्स विल एंटर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ लिख रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। And utilize the energy stored in them. This is made possible by the transport of protons. सी, इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखेंगे, यहां से NADH आया, इसके साथ दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसमें आगे मूव कर गए और प्रोटॉन्स कहां चले गए? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एक सेकंड पहले के ग्राफिक्स को फिर से देखो। These reduced coenzymes need to be oxidized to release and utilize the energy stored in them. This is made possible by the transport of protons and electrons from these coenzymes to oxygen through electron carriers present. यहां भी देखेंगे NADH से भी यही हुआ, FADH से भी यही हुआ। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट साइकिल में जा रहे हैं और प्रोटॉन्स कहां चलते जा रहे हैं? इस स्पेस में। किसी को यहां तक कोई डाउट? अब ये जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा था, ये क्या था? आगे अभी हमने एक ग्राफिक्स में दिखाया था कि दिस वाज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहां पर आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में ये चीजें जा रही हैं। यस आदित्य? सर ये NAD प्लस का क्या है? फिर से बोलो। NAD प्लस 2NADH प्लस NADH प्लस H प्लस जब ये ब्रेक डाउन होगा, ये क्या है? ये कोएंजाइम में जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो चीजें इससे रिलीज हो रही हैं वो इस साइकिल में आगे चली जा रही हैं। समझ में आया? जैसे H2O का एक एग्जांपल लें, अगर हमने H2O को ब्रेक डाउन किया तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और ये भी पढ़े हैं कि उसमें कुछ प्रोटॉन्स बनते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो Z स्कीम हमने पढ़ा था उसको चलाते हैं। वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए। In the inner mitochondrial membrane. कुछ समझ में आया? एक बार और इसको फिर से देखो। Plus H plus ions and 2 molecules of FADH2 and 4 molecules of ATP. These reduced coenzymes need to be oxidized to release and utilize the energy stored in them. This is made possible by the transport of protons and electrons from these coenzymes to oxygen through electron carriers present in the inner mitochondrial membrane. This metabolic pathway of electron transport is called the electron transport system or ETS. यस वगीशा? पहले सर बुक में पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जा रहा है, उसके बाद सेकंड में जा रहा है। सही है वो। अभी आगे नहीं जाना है। अभी मैंने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स 1 की बात की है, उसके आगे मैं खुद ही नहीं गया। अभी तुम क्यों जा रही हो? नहीं, मैं पूछ रही थी। नहीं मत पूछो। अभी जब मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं उसके बाद अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अब तब से एक ही लाइन पे अटका हूं और 30 मिनट निकल गया। ओनली 10 मिनट इज रिमेनिंग, बट टाइम के कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए। ETS serves 3 important functions in aerobic respiration. It regenerates the oxidized form of coenzymes to be used in glycolysis. थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक सेकंड पहले के कुछ चीजें को। Or ETS. अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये एग्जैक्ट डायग्राम है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 और ये रहा 5वां कॉम्प्लेक्स जो यहाँ ATP सिंथेस बना हुआ है। ठीक है, मैंने शुरू में बोला था कि कहीं तो मैंने देखा है 5 कॉम्प्लेक्स।
तो ये वो कंप्लीट 5 कॉम्प्लेक्स है। कहीं पे इसको 5 कॉम्प्लेक्स डायग्राम में लिख देगा, कहीं पे नहीं लिखेगा, बट एग्जैक्ट यही होना चाहिए मेरे हिसाब से कि दिस कंप्लीट साइकिल इज will be completed with the help of 5 complexes only. Clear? ये 5 complex एक सीरीज में दिख रहे हैं सबको. Now see. ETS serves 3 important functions in aerobic respiration. It regenerates the oxidized form of coenzymes to be used in glycolysis and the Krebs cycle. इस पॉइंट में किसी को डाउट? अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, anybody is having any doubt? ये सारी चीजें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बन रही थी, ये हमने पढ़ लिया। यस तनु? सर वो जो प्रोटॉन है वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जा रहा है ना, और ये जो नीचे मैट्रिक्स दिया तो ये प्रोसेस किस में हो रहा है? अरे देवी जी, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। मतलब उसके मेम्ब्रेन में ना हो रहा है? हाँ, ये मेम्ब्रेन के स्पेस में होगा, ये मैट्रिक्स में होगा। इसी मेम्ब्रेन का जो स्पेस होगा यहीं पर ये एंजाइम प्रेजेंट होगी एटीपेज। हाँ बोलो बोलो, जो डाउट है उसको पूछो। सर मैट्रिक्स भी लिखा है, फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी लिखा है, इसी में मैट्रिक्स और 2 मेम्ब्रेन के बीच में, जब माइटोकॉन्ड्रिया के बोर्ड पे देखो, एक सेकंड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखेंगे तो ऐसा इसका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन, ये हो गया। समझ आ रहा है? क्लियर? बोलो हाँ ना। यस। इंटर मेम्ब्रेन का हाँ, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का। पता नहीं अमित के नाम से कोई जुड़ना चाहता है, वो अमित सर हैं कि कोई दूसरा अमित है, बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे देखिए। It transports 2H plus and 2 electrons to oxygen, and it utilizes the energy of the coenzymes in the production of ATP. ETS comprises several electron carriers that include. क्या बोला अभी? ETS will include several electron carriers, जिनको इन 4 को बोल्ड में दिखा रहा था। These electron carriers are called as complex 1, 2, 3, 4. लास्ट वाले को क्यों नहीं रख रहा है? अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं रखा क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम नहीं कर रहा है। एटीपी सिंथेज इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम नहीं कर रहा है, इसलिए जिन बुक्स में अगर उसको कॉम्प्लेक्स 5 नहीं लिखा है तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं लिखा है कि बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्लियर? उसमें कंफ्यूज नहीं होना है सर इसमें 4 लिखा है इसमें 5 लिखा है। NADH dehydrogenase complex or complex 1, ubiquinone or complex Q, succinate dehydrogenase complex or complex 2, cytochrome BC1 complex or complex 3, cytochrome C, and cytochrome C oxidase or complex 4. ठीक है, जो बोर्ड पे मैंने लिखा था यूबिक्विनोन को मैंने क्यों थोड़ा बाद में हटा दिया, क्योंकि यूबिक्विनोन यहाँ दिख रहा है। यूबिक्विनोन इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी का ये पार्ट नहीं है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको यहाँ अलग से दिखाया। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स क्यू और साइटोक्रोम को लिखा अलग, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी। ठीक है, अभी हमें यहाँ तक देखना है। ये 4 कॉम्प्लेक्स में किसी को कोई डाउट? 5 मिनट और बचा है, खत्म नहीं होगा। हम कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, बट जहां तक आज हो जाएगा वहां तक कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। यस आदित्य? सर आप कह रहे हैं कि यूबिक्विनोन किसी का पार्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे बुक में लाइन दिया है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन, इसका मतलब था यूबिक्विनोन को ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में बेसिकली हम उनको रख रहे हैं जो एंजाइम्स है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो यूबिक्विनोन को अलग से लिख दिया, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ये 4 जो नीचे लिखे हैं इनको रख रहे हैं। ठीक, Electrons from NADH plus H plus are transferred through complex 1 to ubiquinone, and protons are moved from the matrix of the mitochondria. ध्यान से सुनोगे जो बोल रहा है, तभी चीजें क्लियर होंगी। एक बार और सुनिए इसको। Electrons from NADH plus H plus are transferred through complex 1 to ubiquinone, and protons are moved from the matrix of the mitochondria
to the intermembrane space. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से कहां आ गए, यूबिक्विनोन के पास आ गए। ये नहीं बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास आ गए, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के पास आए एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस IMM। क्लियर? पहली लाइन आगे देखिए। In the same way, electrons from FADH2 are transferred through complex 2 to ubiquinon. FADH2 एंटर करेगा इस साइकिल में किस कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स सेकंड से। NADH एंटर कर रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, FADH एंटर कर रहा है कॉम्प्लेक्स सेकंड से। बोथ आर ट्रांसफरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू विच पार्ट, यूबिक्विनोन, एंड बोथ आर ट्रांसफरिंग इट्स प्रोटॉन टू IMM। ये सेकंड पॉइंट। क्लियर सलोनी? हाथ उठाओ। ओके। And protons are moved from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. Ubiquinon transfers the electrons to complex 3. जो डाउट था वागीशा का, अभी कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आया, यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को, यानी कॉम्प्लेक्स 1, यहां देखो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे, कॉम्प्लेक्स 3 को। किसके हेल्प से, यूबिक्विनोन के हेल्प से। कॉम्प्लेक्स 1 भी अपने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को देगा, कॉम्प्लेक्स 2 भी अपने इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को देगा, एंड यूबिक्विनोन विल ट्रांसपोर्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3। क्लियर? श्रेया, प्रिया, 3 लोग अभी मेरे स्क्रीन पे आ रहे हो। हाँ आदित्य बोलो। सर मतलब यूबिक्विनोन प्रोटॉन कैरियर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है या इलेक्ट्रॉन कैरियर है, करेक्ट। ठीक, आगे देखिए। 2 मिनट का और टाइम है, 2 मिनट भी नहीं है यार, 1 ही मिनट। Complex 3 transfers the electrons to complex 4 through cytochrome C. ठीक है, जैसे यहाँ यूबिक्विनोन ने काम किया वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, साइटोक्रोम को देगा, एंड साइटोक्रोम विल ट्रांसपोर्ट इट द इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 4। क्लियर? Here too, some protons are moved from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space. Cytochrome C is a mobile carrier attached to the inner membrane of the mitochondria and helps in the transport of electrons between complex 3 and complex 4. Complex 4 contains cytochrome A and cytochrome A3. I am stopping the concept now. अभी सिर्फ इतना ही, अभी इसके आगे कोई कुछ भी मत पढ़ना कहीं से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं इतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ एक कंसेप्ट पहले दिमाग में बनेगा, आफ्टरवर्ड्स वी विल गो थ्रू द एनसीईआरटी लाइंस, तो चीजें क्लियर होंगी। समझ में आ रहा है? यस सृष्टि बोलिए। 1 मिनट इज रिमेनिंग। सर अभी आप बताए ना कि फर्स्ट के सेकंड के बजाय वो डायरेक्ट थर्ड में क्यों जा रहा है, एक बार और रिपीट कर दीजिए। टाइम अभी उतना नहीं है, कल पूछना। और किसी को अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े रहना, ज्यादा कंफ्यूजन लेके मत बैठिएगा, जिसको कहीं होगा। हाँ खुशी बोलो, टाइम ही खत्म हो जाएगा।